Hello class. Now in this lecture we will see the different kind of numerical which is supposed to ask in exam on auto cycle or digital cycle. If you have a look of your syllabus, you come to know there are basically three cycles, three air standard cycles are present, but out of these three, only on diesel and auto cycle there will be numerical supposed to ask in exam. Okay, so this is the first example we supposed to take for this class. Okay, which is on the auto cycle. You can read the problem statement. We will read this problem statement together. Let's say a four-stroke engine. Okay, the engine is four-stroke, working on auto cycle. Okay, has a swept volume of 1.1 meter cube. Now there is a one input we come across, that is the engine is working on an auto cycle. So let's start with the given. As soon as you come to know what kind of auto cycle is there, okay, you just start with the PV diagram. Okay, so as I come to know this is a auto cycle, I just start to draw PV diagram. You know the PV diagram for the auto cycle. Okay, this is the auto cycle. Okay, so this is the PV diagram for the auto cycle. Just draw it. 1, 2, 3 and the 4. Now read the next line. Cycle has a swept volume of 0.1 meter cube. Now we know the swept volume. Okay, कहाँ से कहाँ तक swept volume है? So यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay, और this is the swept volume. Okay, and this remaining is the clearance volume. Is it? This is the clearance volume and this one is the swept volume. So what is a swept volume? It is a 0.1 meter cube. Okay, it is a 0.1 meter cube is given in a problem. So write down over here. It's a 0.1 meter cube is your swept volume. Is it? So ये हो गया आपका swept volume. Now read the next line. What is the next line? The heat addition at a constant volume is 10 kilojoule per cycle. अभी हमको तो पता है इन केस ऑफ द ऑटो साइकिल हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस, ड्यूरिंग विच प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3, ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 हमारा क्या होने वाला है, हीट एडिशन होने वाला है. सो वी कैन राइट Q suffix 2 of 3, it is given 100 किलोजूल पर साइकिल. मीन्स एक साइकिल कंप्लीट होने पे 100 किलोजूल ऑफ हीट लगता है. सो पर साइकिल नहीं लिखा तो भी चलेगा, अब ये दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो सो यू कैन राइट. ओके, सो Q223 is that 100 kilojoule per cycle. Now what is the next thing? The condition at the start of the cycle is at 1 bar. At the start of the cycle means what? At position 1. Okay, it is the start of the cycle. So what is the condition? The condition at the start of the cycle is at 1 bar. So I can say P1 is 1 bar. Is it? Okay, it is given. After that, temperature is 10 degrees Celsius. Sorry, 90 degrees Celsius temperature is mentioned. So write down T1. T1 is 90 degrees Celsius. So this is a 90 degrees Celsius. Convert this thing in Kelvin. So you have to add 273. So what you are getting is nothing but the 363 Kelvin. Okay, just add 273. So you can convert degrees Celsius into Kelvin. So in that way we have converted it into Kelvin. Now what is the next thing remaining? Now they are asking for to calculate something. What are those parameters? Find the ideal efficiency. Now what is the ideal efficiency? हमने दो प्रकार के efficiency देखे list of formula में. एक जो efficiency था that was thermal efficiency and दूसरा जो efficiency था वो था air standard efficiency. So we have seen the two type of efficiency, or we come across the two type of efficiency while studying a dual air standard cycle. Okay, so यहाँ simply उन्होंने क्या कहा है, calculate the ideal efficiency. So just refer a thermal efficiency और उसका formula हमको पता है. What is a efficiency? Thermal efficiency is nothing but W net divided by Q added. Okay, this is nothing but the, यही तो हमको पता नहीं है. ओके, सो ये हमको निकालना है. सो डब्ल्यू नेट के लिए हमको क्या लगेगा? डब्ल्यू नेट के लिए हमको हीट एडेड तो हमको दिया, हीट रिजेक्टेड कितना है वो पता चाहिए. हीट रिजेक्टेड निकालने के लिए हमको टेम्परेचर एट T4, टेम्परेचर एट T1 वो लगेगा. इवन दो हमको मास लगेगा, कितना मास, अब यहाँ कहा बोला ही नहीं है कि यूनिट मास इज देयर. ओके, let it be if there is no chance to calculate mass or any provision is available to calculate mass, in that case you can say the unit mass. But now there is a provision. If you read properly this numerical,
problem statement will come across that there is a provision to calculate the mass. Okay, but if somehow there is no chance to calculate mass, in such case you can consider the unit mass. But to calculate the heat rejected, heat added आपको दिया है, W net निकालने के लिए आपको heat added माइनस heat rejected करना पड़ेगा as per the problem statement. बट हम देखते हैं कि heat rejected का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें हमको क्या लगेगा कि टेम्परेचर एट T4 एंड टेम्परेचर एट T1 लगने वाला है और मास भी लगने वाला है. CV तो उन्होंने दिया है बाय डिफॉल्ट. फॉर्मूला क्या है हीट रिजेक्टेड का, MCV T4 माइनस T1. सो T4 T1 नहीं दिया है उन्होंने. ओके, तो वो लगने वाला है. हीट एडेड हमको पता है डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 100 किलो जूल, दैट इज 2 to 3 प्रोसेस हीट एडेड. ओके, सो ये हमें ये निकालना है. नेक्स्ट थिंग हमें क्या निकालना है, आइडियल एफिशिएंसी हो गया. मीन इफेक्टिव प्रेशर. अभी मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP. ये क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है W नेट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है V1 माइनस V2 और डायरेक्टली स्वेप्ट वॉल्यूम, वो पता है हमको. ओके, V1 माइनस V2 करो या डायरेक्टली स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है उन्होंने, तो वो भी डायरेक्टली लिख सकते हो. बट W नेट आपको पता होना चाहिए, वही W नेट जैसे यहाँ लगता है वही यहाँ भी लगने वाला है हमें. ये एक फाइंडिंग है. दूसरा फाइंडिंग है, और व्हाट इज द थर्ड फाइंडिंग यू हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर एट ऑल की पॉइंट्स. ऑल की पॉइंट्स मीन्स जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट 1 पॉइंट मीन टू से स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इन ऑल स्टेट पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर निकालना है. ओके, सो स्टेट 1 का टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता है, इट इज गिवन, but you don't know about what is the temperature and pressure at state 2, you don't know about what is the temperature and pressure at state 3, you don't know about temperature at state 4 and sorry, and the pressure at state 4. So you have to calculate it. So all temperature and pressure at all key points. Okay, temperature and pressure at all key points you supposed to calculate. Now we'll start with the solution. Okay, so those are our given. यहाँ हमने अपने given को देख लिया. This is our given. Okay, now no need to refer a problem statement. ये है आपका cycle, ये है आपके givens और ये है आपके findings. आपको क्या क्या निकालना है. Okay, so now we'll start with the solution over here. It's very simple. I try to cover all the difficulty level which may supposed to ask in your exam, क्योंकि एग्जाम में आपको ओनली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके सिर्फ एक ही फाइंडिंग पूछ सकते हैं. थर्मल एफिशिएंसी निकालो या मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालो या सिर्फ कंप्रेशन रेशियो निकालो या टेम्परेचर प्रेशर ही निकालो एक एट पर्टिकुलर पॉइंट. बट हमने एक ही प्रॉब्लम में ऑल फाइंडिंग इंक्लूड करने का ट्राई किया. सो इसके अलावा हटके कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आ सकता. We are at a diploma level at least. Okay, so we'll start with the solution. Okay, so solution के start करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो चीजें हमें निकालनी है. पहले हमें मास निकालना है. ओके ओके, सो मास निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू MRT. ये स्टेट फॉर्मूला सबको पता है, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1. हमने फर्स्ट स्टेट को अप्लाई करते हैं. तो इस फॉर्मूले हमको क्या पता है, हमको प्रेशर पता है, यस पता है, हमें 1 बार है. वॉल्यूम पता है हमें, नहीं वॉल्यूम नहीं पता है हमें, तो हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. इस फॉर्मूले से हमको मास निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हमें P1 पता है, V1 नहीं पता, M नहीं पता, R पता है हमें और टेम्परेचर पता है. सो हमें पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम नहीं. अभी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम अगर गौर से देखें तो हमको पता चलेगा कि हमें क्या दिया है, स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है. तो अभी स्वेप्ट वॉल्यूम से हमें क्या निकालना है, हमारा V1 निकाला है और हमें कॉम्प्रेशन रेशियो भी दिया है. शायद से वो गिवन नोटिस करना रह गया है. स्वेप्ट हमें कॉम्प्रेशन रेशियो भी बोला है. लेट्स रीड वन थिंग इज व्हाट स्किप फ्रॉम द न्यूमेरिकल, दैट इज कॉम्प्रेशन रेशियो. सो RC is another thing which is given, that is 7, which is I think missed by me from the problem statement. So RC is the compression ratio which is also given. So हमें क्या क्या पता है, RC पता है. Now what is the RC, हमें फॉर्मूला लिस्ट में अगर हम देखें तो RC is nothing but V1 by V2, is it? So वो क्या है, वो है 7. So इससे हम क्या बोल सकते हैं, V1 is equal to 7 times of V2. ये हमें फर्स्ट रिलेशन मिल गया, is it? Now अभी हमें क्या पता है, V1. अभी हमें V1 पता है. ओके, सो हम ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया.
Okay, after that V1 minus V2 is equal to what? स्वेप्ट वॉल्यूम। ये बराबर बोला मैंने, देखिए यहाँ तक हमारा V1 है, ओके, और हमें स्वेप्ट वॉल्यूम क्या बोले? स्वेप्ट वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम रहेगा, और पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक ये हमारा रहेगा क्लियरेंस वॉल्यूम। ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके, इज इट? सो ये हो गया हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम, ये हो गया हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। सो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये पूरा लेंथ माइनस ये छोटा लेंथ अगर हम कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग Vs, और Vs कितना दिया है? वो दिया है 0.1, ओके, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 what is the value of V1? V1 is 0.7 times of V2, so I supposed to put this thing here, okay, in this equation, okay, so this V1 become now 7 of V2 minus V2 is equal to 0.1, okay, now it become 7 V2 minus V2 is 6 V2 is equal to 0.1, okay. So after that ये हमारा इक्वेशन आया था 6V2 is equal to 0.1, now V2 is equal to 0.1 divided by 6, okay, now it become V2 is equal to 0.01667, and what is the unit? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बिकॉज जो हमारा 0.1 था ना जो हमने डाला, इट इज इन अ मीटर क्यूब, सो जो भी हमारा कैलकुलेशन आने वाला है दैट विल बी आल्सो इन मीटर क्यूब। सो ये हुआ हमारा V2, ओके, वेरी सिंपल, हमने सिर्फ रिलेशन किया। अगेन देख लेते हैं फिर से हमने क्या किया था, ओके, क्या था? पहला फॉर्मूला था P1 V1 is equal to MRT1 which is applicable to any state present in the cycle, सिंपल, ओके। सो ये साइकिल हमारा क्लोज है, सो इस पॉइंट पे जो मास रहेगा वही दूसरे स्टेट पे रहेगा, क्योंकि क्लोज साइकिल है, मास चेंज नहीं होने वाला। सो हमको मास निकालना था, उसके लिए हमने ये सब फॉर्मूला रेफर किया है। सो P1 V1 is equal to MRT1, इस फॉर्मूले से हमें मास मिलने वाला है, बट इस फॉर्मूले में अप्लाई यूज करने के टाइम हमें ये ध्यान में आया है कि प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता, मास नहीं पता, आर पता है, टेम्परेचर पता है। सो दो अननोन है, इस दो अननोन को हमको एक अननोन में कन्वर्ट करना है। सो V1 हमें पता करना है, तब हमें मास निकाल पाएंगे। सो मास निकालने के लिए हमें देखते हैं कि V1 निकालने के लिए हमें क्या गिवन था, तो हमें RC गिवन था, दैट इज कॉम्प्रेशन रेशियो है, हमें गिवन था। सो कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है? V1 by V2 और इट इज 7। सो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो को, ये इक्वेशन को V2 इधर लाके ये बन गया V1 of 7V2, ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ना हमें पता है कि हमें दिया है कि स्वेप्ट वॉल्यूम ये 0.1 मीटर क्यूब है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन का, वो कितना है? 0.1 मीटर क्यूब। बट V1 माइनस V2 अगर हम कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस ये टोटल वॉल्यूम जो है V1 है, ये टोटल वॉल्यूम है, ओके, ये है V टोटल, ओके, सो वो है टोटल वॉल्यूम। सो अगर टोटल वॉल्यूम में से हम क्लियरेंस वॉल्यूम दैट इज V2 इतना ही वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्वेप्ट वॉल्यूम। सो ये इक्वेशन हमें पता है। सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Vs एंड इट इज गिवन 0.1 मीटर क्यूब, ओके, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या निकला था? V1 ये पॉइंट क्लियरेंस वॉल्यूम के 7 टाइम्स है, ओके। सो ये क्या किया हमने? ये यहाँ पुट किया, 7V2 माइनस V2 वी विल गेट द 0.1 एंड इट विल बिकम 6V2 ऑफ 0.1। नाउ उस यही इक्वेशन को पकड़ अगर हमने आगे सॉल्व किया तो वो बन गया 6V2 इक्वल टू 0.1, V2 हमें मिल गया 0.1 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0.01667 ऑफ मीटर क्यूब। सो दिस इज अवर फाइंडिंग ऑफ V2। अभी V2 पता चल गया तो हमको V1 भी पता चल जाएगा। व्हाट इज अ V1? V1 इज 7 टाइम्स ऑफ V2, हमने जो रिलेशनशिप निकाला था उसके हिसाब से, ओके। सो इट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01667, ओके। व्हाट वी विल गेट? Okay, we will get 0.11669 मीटर क्यूब। सो ये हो गया आपका V1,
अभी V1 तो पता चल गया, ओके। नाउ यू कैन कैलकुलेट द मास. व्हाट इज द which formula we supposed to use for the mass calculation? That is we have discussed already. P1 V1 is equal to mr T1. This is the formula for the state, is it? Okay. So यहाँ प्रेशर पता है हमें, ओके। अभी ये प्रेशर किस चीज में दिया है? बार में दिया है. सो ये ध्यान में रखो, जब यहाँ मीटर सेंटीमीटर ये चीज रहेंगे, सो प्रेशर को पहले बार से पास्कल में कन्वर्ट करो. पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये मीटर में दिया है ना प्रेशर, वॉल्यूम हमारा मीटर में, सो प्रेशर पास्कल में लेके नहीं चलने वाला, हमें प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ने वाला है. सो हमारा प्रेशर किस में दिया है? अगर हमने यही कन्वर्ट किया, स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट किया होता तो ये 1 बार में दिया है. सो 1 बार मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके. सो 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर हो गया. वही हम यहाँ डालेंगे. P1 पता है हमें 1 × 10⁵, ओके. V1 हमें पता है 0.11669, ओके, मीटर क्यूब, इक्वल टू व्हाट इज द मास, वही तो हमें निकालना है, ओके. आफ्टर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं, ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर द एयर. हमने इसको देखा है चैप्टर नंबर 1 में, और उसका वैल्यू है 287, ओके. ये जो भी है, अगर इधर किलो पास्कल लिया होता तो ये आर का वैल्यू किलो जूल में रहता. हमने यहाँ लिया है पास्कल, ओके. सो आर का वैल्यू है 287. इट इज अगर ये किलो जूल में लिया होता तो ये रहता था 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन. अभी हमने क्या लिया, इसको 287 लिया है स्टिक. सो इट इज 287, ओके. सो 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.11669 इक्वल टू m × 287 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर. व्हाट इज इट? T1 हमें क्या दिया है? इट्स 363. इट इज मेंशन ओवर हियर इन केल्विन, ओके. ये ध्यान में रखो, जो यूनिट क्या ले रहे हैं हम. अब ये टेम्परेचर केल्विन में क्यों लिया? क्योंकि जो भी हमारा R है उसका वैल्यू है जूल पर केजी केल्विन, उसका यूनिट है जूल पर केजी केल्विन. सो पर केल्विन है, इसके लिए टेम्परेचर भी केल्विन में ही लगने वाला है हमें, ओके. ये ध्यान में रखो. So after the simplification of this equation or rearrangement of this equation, we will get what 1 × 10⁵ multiply by 0.11669, okay, divide by this thing 287 multiply by 363, okay. Now at the end you will get the mass something like 0.112 kg. So हमारा मास बन गया 0.112 kg. सो ये हो गया हमारा मास जो हमें चाहिए था टू कैलकुलेट द नेट W नेट, ओके, इन द फॉर्मूला ऑफ हीट रिजेक्शन, ओके. ये समझ में आया? ये अभी हम डायरेक्टली W नेट निकाल सकते हैं अभी, बट W नेट अगर निकालना है तो हमें टेम्परेचर पता नहीं, T4 एंड T1, ओके. सो T4 एंड T1 के लिए हमें पहले ट्राई करना पड़ेगा. जब अभी डायरेक्टली अगर हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं हीट रिजेक्टेड के लिए, समझो W नेट के लिए. सो व्हाट इज द W नेट? इट इज नथिंग बट हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड. सो व्हाट इज द हीट रिजेक्ट? क्यू एडेड तो हमको दिया है डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 100 किलो जूल, बट हीट रिजेक्टेड नहीं पता. तो 100 किलो जूल माइनस हम क्या करेंगे, MCV T4 माइनस T1, ओके. आपको CV पता है, इट इज गिवन इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 0.718. आपको मास पता है क्योंकि अभी आपने अभी निकाला है 0.112 kg, और QA पता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, बट T4 एंड T1 नहीं पता. सो यहाँ फिर से स्टक हो गए. सो T4 एंड T1 पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही W नेट निकलेगा. और ये W नेट अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे थर्मल एफिशिएंसी के, और QA जो है दिया है 100, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगा. सो हमें अभी T4 एंड T1 भी निकालना पड़ने वाला है, ओके. सो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएंगे अभी. सो फर्स्ट प्रोसेस में हमें टेम्परेचर T2 निकालना पड़ेगा, T2 के बाद T3 निकालना पड़ेगा, T3 के बाद T4 निकालना पड़ेगा. सो विद रिस्पेक्ट टू हमें प्रेशर भी निकालना है, okay. So we will do with the pressure and temperature finding at all key points, okay. So the first thing, I'll just take the example of the first process 1 to 2. प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएंगे हम, डायरेक्टली इसमें नहीं आएंगे. डायरेक्ट जो T4 और T1 डायरेक्ट T4 नहीं निकाल सकते. T1 तो गिवन है, T4 निकालना पड़ेगा, बट डायरेक्ट T4 पे जंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस इससे रिलेटेड है, ये प्रोसेस इससे रिलेटेड है, ये प्रोसेस इससे रिलेटेड है. सो इसके आगे के, इसके पहले के जो टेम्परेचर प्रेशर नहीं पता है तो डायरेक्टली T4 नहीं निकाल सकते. हाँ, तो आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो, डायरेक्टली T4 निकाल सकते हो, बट ये वे भी है, ये वे भी है.
सो हम इस वे से जाएंगे, लॉन्ग कट से जाएंगे। सो एट द सेम टाइम 2 3 और जो पॉइंट है उसके भी टेम्परेचर प्रेशर हमें मिल जाएंगे। ओके, सो डायरेक्टली 4 पे नहीं जाते, प्रोसेस 1 to 2 स्टार्ट करते स्टेप बाय स्टेप। सो हमें पता है स्टेप प्रोसेस 1 to 2 जो है दैट इज P1 V1 रेज टू गामा, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है ना वो, P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। ये हमारा इक्वेशन है ये आपको सबको पता है। और अनदर वे वी कैन से, अगर हमने P1 by P2 इज इक्वल टू V1 by V2 रेस टू गामा, ये रिलेशन तो हमने देखा ही है। आपका जो प्रॉब्लम आज सुबह, मतलब आज जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया आपको, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो दिया है, उसमें अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का अगर रिलेशन देखा, सिंप्लीफाई किया, तो वो रिलेशन ऐसे ही आने वाला है जो हमने टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिया। अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशनशिप सिर्फ लिया, ओके चलो वो लेके देखते। चलो ये मैं डायरेक्ट फार्मूला में पहुंचा। ओके, हम जो प्रॉब्लम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में दिया है उस हिसाब से जाएंगे, डोंट कंफ्यूज। एज पर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला क्या है वो, P2 by P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, गामा माइनस 1 का रूट ले लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, P2 by P1 रेज टू 1 अपॉन गामा एंड V1 by V2 ऐसे के वैसे। ओके, गामा माइनस 1 का रूट ले लिया। नाउ गामा दी पावर लेते हैं। सो ये जो रूट है वो चला जाएगा, बट इसके ऊपर पावर आ जाएगा। सो ये अभी इक्वेशन बन जाएगा P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 रेज टू गामा। ओके, इसका गामा दी पावर ले लिया। सो इसका ये रूट था तो गामा गामा चला गया और इसके ऊपर वो पावर आ गया। सो दिस इज द कन्वर्जन। हम इस वे से भी जा सकते हैं या डायरेक्टली लिस्ट ऑफ फॉर्मूला से भी ये इक्वेशन जनरेट हो सकता है। सो अब ये इक्वेशन का ये जो इक्वेशन जनरेट हुआ है इसका यूज करेंगे हम। ओके, क्या इक्वेशन जनरेट हुआ है हमारा, P2 by P1 is equal to V1 by V2 raised to gamma। ओके, अभी इसमें आपको क्या पता है, V1 by V2 पता है। व्हाट इज V1 by V2, ये हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो है। सो हम डायरेक्टली V1 by V2 क्या रख सकते हैं 7 एंड व्हाट इज अ गामा 1.4। ओके, सो P2 इज इक्वल टू व्हाट 7 raised to 1.4 multiplied by what is a P1 1 into 10 raised to 5 पास्कल। ओके, और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा P2 और P2 हमारा आ गया है 15.25 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बार में कन्वर्ट कर लेते, वो बन गया 15.25 बार। सो दिस इज योर P2 नाउ। ओके, P2 निकल गया, वेरी सिंपल। ओके, आफ्टर दैट लेट्स गो नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर के बारे में हमें पता है वो रिलेशन क्या दिया है हमारे एज फॉर्मूला लिस्ट में, T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1। जो हमारा जो हमने ये दिया है लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। ओके, ये हमारा लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है। So T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1। ये तीनों का रिलेशन एक साथ में दिया है हमने। तो जो दो रिलेशनशिप हमको यूज कर सकते हैं वो दो हम अलग से यूज करेंगे। पहले हमने जो रिलेशनशिप यूज किया था पहले टाइम, वो प्रेशर और वॉल्यूम का यूज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। सो इतना ही से हम लिख रहे हैं, पहले इतना प्रेशर और वॉल्यूम का यूज किया था, अब टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी यूज कर रहे हैं रिलेशनशिप। सो हमको पता है V1 by V2 क्या है हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो, इट इज गिवन। सो हो गया 7 रेज टू गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 मतलब क्या हो गया 1.4 माइनस 1 हो गया हमारा 0.4। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, T2 निकालना है ना हमें। सो T2 इज इक्वल टू 7 रेज टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय T1। सो
7^0.4 मल्टीप्लाई बाय T1 क्या है हमारा, समथिंग कुछ तो 363 है, 363 केल्विन। सो वो अगर हम पुट कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ गया है T2 का, वो होता है 790.6 केल्विन। सो ये हो गया हमारा T2। ओके, ये हो गया हमारा T2 दैट इज 790.6 केल्विन। नाउ वी विल गो फॉर द हीट rejected because we can't go directly, but some still some things are remaining over here. Okay, okay, still some things are remaining over here. So heat supplied, abhi on the basis of heat supplied we can calculate the T3 also. There are two way to calculate the T3. अभी हमको T2 और T3 के बारे में अभी यहाँ तक पहुँचे हम। पॉइंट 1 पे हमें प्रेशर पता है, पॉइंट 1 पे हमें टेम्परेचर पता है। ओके, वैसे भी वॉल्यूम भी पता है, पॉइंट V1 पता है हमें। ओके, V1 पता है, देखिए यहाँ। ओके, V1 पता है, और उसी तरह पॉइंट 2 पे हमें प्रेशर पता है, प्रेशर पता चल गया है। ओके, पॉइंट 2 पे हमें टेम्परेचर पता चल गया है, पॉइंट 2 पे हमें वॉल्यूम भी पता चल गया है। ओके, सो उसी तरह पॉइंट 3 पे हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बट एक अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, गिवन हीट एडेड कितना है 10 किलो जूल पर साइकिल। सो instead of using temperature volume relationship, one can use temperature volume relationship mentioned in the list of formula, but another people can also use other way also. So that other way I can I supposed to put in front of you, that is by using a heat added formula. How can you calculate the temperature T3? Okay, so we know the heat added 2 to 3, it is heat added during the process 2 to 3. Okay, so उसके हिसाब से हम कैसे निकाल सकेंगे? So वो है mass multiply by CV T3 minus T2. Okay, heat added during the process 2 to 3. Okay, so वो क्या है, ये फॉर्मूला है ना हीट एडेड का हमारा, MCV T3 minus T2 हीट एडेड। बट हमको पता है हीट एडेड कितना है, 100 किलो जूल पर है। ध्यान में दो, ये किस यूनिट में है, किलो जूल में है। सो हमें मास पता है, मास क्या दिया है हमारा, हमने कैलकुलेट किया, वो मास क्या है, वो कैलकुलेट किया हुआ मास 0.112। ओके, सो वो मास है हमारा यहाँ 0.112। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV इज 0.718। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और T2 हमें पता है, अभी ही कैलकुलेट किया 790.6 केल्विन इज इक्वल टू 100। नाउ अगर यह इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन यू विल गेट द T3, द वैल्यू ऑफ T3 इज 2034 केल्विन। सो ये हो गया आपका T3, एंड ये हो गया फर्स्ट मेथड। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन से दिस मेथड फर्स्ट। अभी मेथड 2 अगर कोई दूसरा बंदा है, उसको बोलना है ना ये मेथड मुझे पसंद नहीं है, ठीक नहीं लग रहा, मैं दूसरे मेथड से कैलकुलेट करता हूँ मेरा T3। ओके, सो उसके लिए मेथड क्या कर सकते हैं हम, अभी ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू P3 V3 बाय T3। ये हमारा रिलेशनशिप है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का। अभी इसमें से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हम कट करते हैं तो ये ही इक्वेशन बन जाता है बाद में, P2 by T2 is equal to P3 by T3। नाउ यहाँ आपको क्या क्या पता है, आपको T2 पता है, ओके, वो पहले इक्वेशन में निकल गया था। ओके, आपको P2 पता है, P2 भी हमने निकाला है 15.25 बार। आपको P3 पता है, हमको P3 नहीं पता, हमको T3 भी नहीं पता। ओके, सो ये चीज़ आपको पता नहीं है। सो इसके लिए आपको फिर से कॉम्प्रेशन रेशियो का हेल्प लेना पड़ेगा और आपका स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ जाएगा। सो हाउ द स्टेप कैन बी रिड्यूस, ये आपको थिंक करना है। आपका यही चीज़ आपको कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। देन यू सपोज टू कम टू नो कि हम किस वे से अगर कैलकुलेट करते हैं T3, सो हमारा एक स्टेप्स कम हो जाएगा, और जो 5 मार्क का 6 मार्क का न्यूमेरिकल है फॉर एग्जांपल, वो 2 मिनट में कैसे सॉल्व हो सकता है। ओके, सो मेथड 2 से आपको थोड़ा लॉन्ग कट पड़ने वाला है। सो बेटर वे टू गो थ्रू दिस स्टेप मेथड 1। ओके, अगर इस टाइप के गिवन रहे तो। नाउ अभी ये हो गया मेथड 1, मेथड 2 भूल जाए अभी।
अभी ये क्या हो गया, हमें T3 पता चल गया, अभी हमको क्या निकालना है, P3। सो P3 निकालने के लिए यही हमने इक्वेशन यूज यहाँ जनरेट किया है। सो यहाँ आपको P2 पता है, यहाँ आपको T2 पता है, यहाँ आपको T3 भी पता चल गया है, सिर्फ P3 आपको निकालना है। सो ये इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो इक्वेशन क्या बनता है, P2 मल्टीप्लाई बाय T3 डिवाइड बाय T2, इज इट। सो ये हो गया P3 हमें निकालना है, इक्वेशन यहाँ इस P3 को यही रखा, T3 को इधर लेके गए, मल्टीप्लाई करते हैं P2 बाय T3 डिवाइड बाय T2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नया। सो P2 का वैल्यू क्या है, P2 का वैल्यू है 1 इंटू 10 सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स 15। अभी देखिए, अभी अगर आप इधर प्रेशर का वैल्यू अगर बार में डालते हो तो आपको एक वैल्यू आने वाला P3 भी बार में मिलेगा। अगर आप वैल्यू P3 और P2 का, ये P2 है हमारा, ये P2 का वैल्यू अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डालते हो तो आप आने वाला P3 का वैल्यू भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आने वाला है। सो जो आप डाल सकते हो डालो, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। बट जब इक्वेशन इस तरह के होते हैं, जैसे यहाँ देखो, इधर आर सीवी का वैल्यू किस टर्म में दिया है, ओके, या पीछे के टर्म में अगर हमने प्रेशर के बारे में बात किया ये इस इक्वेशन में, ओके। सो यहाँ आर का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, सो ये भी पास्कल में ही चाहिए, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, ओके ओके। सो इन दैट वे अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, सो आपको प्रेशर भी मीटर क्यूब के फॉर्म में ही चाहिए। सो ये यूनिट जब आप डालते हो P1 V1 या टेम्परेचर का वैल्यू अगर डालते हो, उस टाइम आप ध्यान दो कि अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए। अगर इधर आर का वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन में है तो प्रेशर किलो पास्कल या किलो न्यूटन में आना चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। अगर आर क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन में है, सो प्रेशर किस में आना चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अगर आर का वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन है, सो टेम्परेचर भी केल्विन में होना चाहिए, मास केजी में होना चाहिए। सो ये यूनिट ध्यान में दो, अदरवाइज ये अगर यूनिट आप ध्यान में नहीं दोगे, सीधा आया दिया हुआ गिवन आप फॉर्मूला में पुट करोगे, सो योर वैल्यू विल बी डिफर अ लॉट, ओके। सो जो भी आंसर आने वाला है वो डिफर होगा, सो वो ध्यान में दो। बाकी तो सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस यूज करना है। अभी हम कहाँ थे, सो P3 निकाल रहे थे हम। सो P2 मल्टीप्लाई बाय T3 डिवाइड बाय T2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, अगर यहाँ मैं बार में ही लेता हूँ, जो भी दिया है हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 15.25 बार, ओके। सो लेट इट बी 15.25 बार मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3। T3 हमने अभी ही निकाला है, दैट इज 2034 केल्विन, सो वो डाला 2034 Kelvin, okay, 2043 Kelvin. After that, what is the value of T2? T2 is 790.6 Kelvin. Okay. Now we will get, after the calculation, P3 is nothing but 39.24 बार। सो ये हो गया आपका P3। नाउ आपके पास P3 अवेलेबल है। सो हम कहाँ तक पहुँचे, हमको P1 T1 पता है, हमको V1 पता है, हमको P2 V2 और T2 पता है, हमको P3 V3 और T3 भी पता है। अभी यहाँ V2 इक्वल टू V3 है, सो V2 पता है तो V3 भी पता है। यहाँ V1 इज इक्वल टू V4 है, सो अगर V1 पता है तो V4 भी पता है। सो हमें अप टू पॉइंट 3 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता चल गया। नाउ हमें एट पॉइंट 4 प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना है, ओके। आई विल प्रोसीड फॉर दैट। चलो, सो for the adiabatic process, now for the constant volume process 2 to 3 P3 निकलेगा। तो for adiabatic process, for the process 3 to 4, ओके। हम प्रोसेस कौन सा ले रहे हैं, ये 3 to 4 प्रोसेस ले रहे हैं हम, ओके। 3 to 4 प्रोसेस के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। सो 3 to 4 प्रोसेस के लिए हम लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। So P4 by P3 is equal to V3 by V4 raised to gamma। वही हमारा जो प्रॉब्लम जो हमारा ये रिलेशनशिप है, ये लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला है ना हमारा। तो इसमें ये जो रिलेशनशिप है, हमने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लिया है, ये दोनों का रिलेशनशिप लिया सिर्फ, और उस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई अगर हम कर रहे हैं, गामा -1 गामा -1 कट हो गया और ये गामा यहाँ चला गया। सो ये इस तरह ही आपको इक्वेशन मिलने वाला है, रिलेशनशिप, ओके। वही से हमने किया, जैसे हमने पहले मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया था आपको, उसी वजह से ही आने वाला है, ओके। सो P4 by P3 इज इक्वल टू V3 by V4 रेज़ टू
गामा। अभी ये ध्यान दीजिए कि व्हाट इज V3 by V4। हमको पता है V1 by V2 क्या है, यह है RC दैट इज कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट V4 by V3। ओके, बिकॉज ये अगर हम ऑटो साइकिल निकाल रहे हैं, ओके, एक कॉर्नर में थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ मैं। अगर हम ऑटो साइकिल निकाल रहे हैं, ये हमारा ऑटो साइकिल है, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4, ये हो गया हमारा PV प्लॉट। ओके, सो V1 इज इक्वल टू V4 है एज पर द इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू V4 और V2 इज इक्वल टू V3 है, बराबर। V2 इज इक्वल टू V3, सो V1 बाई V2 क्या हो गया RC, सो V4 बाई V3 भी क्या हो गया RC। बट यहाँ क्या है V3 बाय V4, सो ये नथिंग बट क्या है 1 अपॉन RC है। ओके, इट्स 1 अपॉन RC। ओके, सो P4 बाय P3 इज इक्वल टू RC क्या है, RC का वैल्यू क्या है 7, सो 1 अपॉन 7 रेज टू 1.4। सो अभी हमारा P4 बन जाएगा 1 अपॉन 7 रेज टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय P3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3, हमने कैलकुलेट किया था P3 जस्ट प्रीवियसली, सो 39.24 बार। ओके, 39.24 बार ये हमारा क्या है, हमारा P3 है। ना P4 हम कैलकुलेट करते हैं, P4 हो गया हमारा इसके बेस पे 2.57 बार, सो ये हो गया हमारा P4। ना हमें T4 कैलकुलेट करना है, सो सेम वे हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप यूज करेंगे। T4 बाय T3 इज इक्वल टू T4 बाय T3 इज इक्वल टू V3 बाय V4 रेज टू गामा माइनस 1। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला से ही है ये भी। ओके, सो V3 बाय V4 इज नथिंग बट व्हाट, सिमिलरली यही 1 अपॉन RC, ये रेसिप्रोकल ऑफ RC, क्योंकि हमको पता है V4 बाय V3 क्या होता है RC होता है, सो V3 बाय V4 क्या होगा 1 अपॉन RC होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेशन रेशियो। इज इट ओके। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, T4 निकालना है, T3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 अपॉन 7 रहेगा और ये गामा माइनस 1 बोले तो 0.4 हो जाएगा। T3 क्या है, T3 हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियसली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3, इट्स 2034 केल्विन 1 अपॉन 7 रेज टू 0.4, ये हमारा आंसर आने वाला है 934 केल्विन। सो ये हो गया आपका T4 934 केल्विन। ओके, सो अप टिल दिस पॉइंट हमने सब वैल्यू निकाल लिया है, हमने प्रेशर निकाल लिया है, टेम्परेचर निकाल लिया है और वॉल्यूम निकाल लिया है एट ऑल द साइलेंट पॉइंट और एट ऑल द की पॉइंट ऑफ द साइकिल। ओके, सो हमारे पास है T1 P1 V1, T2 P2 V2, T3 P3 V3, T4 V4 एंड P4। हमारे पास ऑल पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम है वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। नाउ एक फाइंडिंग तो हो गया, दैट इज टेम्परेचर प्रेशर एट ऑल की पॉइंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ हमें थर्मल एफिशिएंसी एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्म, उसके लिए हमें W नेट निकालना पड़ेगा। सो W नेट क्या है हमारा QA माइनस Q रिजेक्टेड। सो हम W नेट निकाल देते हैं पहले। What is the W net? Is heat added minus heat rejected. What is the heat added? Heat added is given, that is 100 kilojoule. So minus हमें इसको किलोजूल में दिया है, हमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हमें किलोजूल में ही कैलकुलेट करना है। सो QR जो रहेगा हमारा रहेगा MCV। ओके, MCV T4 माइनस T1। ओके, व्हाट इज हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, साइकिल T4 से लेके 4 से लेके 1 तक। सो हीट रिजेक्टेड रहेगा हमारा क्या रहेगा T4 माइनस T1। इज इट T4 माइनस T1 रहने वाला है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय मास क्या आया था हमारा, मास था 0.112 kg।
अभी CV जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, अभी यही CV किलो जूल में है और एक हीट एडेड भी किलो जूल में है, सो बराबर हो गया। अगर ये CV जूल में दिया होता सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इन किलो जूल, देन एंड देन ओनली जो भी यहाँ हम QR निकाल रहे हैं वो किलो जूल में आता था, अभी गिवन में ही किलो जूल में दिया है, सो नो नीड टू कन्वर्जन, इट इज ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ ही दिया है आपको। सो 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। हमारा T4 क्या है, हमारा T4 है कुछ हमने निकाला है 934 ओके केल्विन, और हमारा T1 है कुछ 363 केल्विन, ओके 363 केल्विन। अगर इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमें W नेट ऑलमोस्ट मिल जाता है 54.08 किलो जूल। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। ओके सो W नेट हमें मिला 54.08 किलो जूल। ओके 54.08 किलो जूल पर साइकिल बोलो या किलो जूल बोलो, इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके नाउ लेट इट बी व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी इज नथिंग बट द W net divided by heat added or heat supplied. So what is the W net, that is 54.08 kilojoule per cycle, and Q added is ये है हमारा 100 किलोजूल पर साइकिल। ओके 100 हमने डाल दिया, ठीक है 2 to 3 प्रोसेस। सो नाउ हमारा जो भी थर्मल एफिशिएंसी है वो कितना आ गया हमारा, डिवाइड बाय 100, सो इट इज 0.54.08। ओके ये हमारा आइडियल एफिशिएंसी आ गया। नाउ हम निकालेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला है हमारा P मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू W नेट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, अभी पिस्टन कितना डिस्प्लेस होता है, पिस्टन ओनली स्वेप्ट वॉल्यूम इतना ही डिस्प्लेस होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब TDC से लेके BDC तक, मतलब ये हमारा समझो TDC है जो मैंने एक्सप्लेन किया था ऑटो साइकिल के टाइम, सॉरी BDC है, और ये हमारा TDC है। सो इतने ही दरमियान पिस्टन डिस्प्लेस होता है, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। स्वेप्ट वॉल्यूम इतना हमारा पिस्टन डिस्प्लेस होने वाला है, सो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट है V1 माइनस V2, बट इट इज ऑलरेडी गिवन स्वेप्ट वॉल्यूम, सो यू कैन डायरेक्टली यूज स्वेप्ट वॉल्यूम व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर नहीं दिया है तो आपको V1 माइनस V2 करना है। ओके सो ये ध्यान में रखें 54.08 ये जो है हमारा नेट वर्क डन है, और डिस्प्लेसमेंट जो भी गिवन है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दैट इज 0.1 मीटर क्यूब। अगर 0.1 मीटर क्यूब स्वेप्ट वॉल्यूम एंड डिस्प्लेसमेंट इज वन थिंग, अगर नहीं दिया है सो यू हैव टू टेक इट V1 माइनस V2। ओके सो नाउ ये हो गया आपका मेन इफेक्टिव प्रेशर जो आने वाला है यहाँ, वो हो गया 5.408 बार। ओके ये हो गया आपका 5.408 बार, बट जो भी है आपका पहले जो इक्वेशन जो भी वैल्यू आने वाला है वो कुछ 540, जस्ट अ मिनट, वर्क डन जो भी है हमारा ये जो है जूल में है, ये जो आंसर है ये किलो जूल में है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, ओके सो ये हो गया जूल में, जूल डिवाइड बाय जूल इज नथिंग बट द न्यूटन मीटर। ओके न्यूटन मीटर हो गया, और ये जो है वो भी मीटर क्यूब में है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा हमारा 54.08 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके यूनिट का थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ओके यूनिट में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। सो 54.08 मल्टीप्लाई बाय 1000 इसलिए किया कि ये पहले किलो जूल में था, जो भी हमारा यूनिट जो भी हमारा वर्क डन आया था वो किलो जूल में आया था। सो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये जूल बन गया, और जूल डिवाइड बाय मीटर क्यूब डिस्प्लेसमेंट। सो 54.08 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 0.1 मीटर क्यूब। सो वो जो भी आंसर आने वाला है वो हो गया हमारा 54.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी इसको बार में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो
हमें क्या करना पड़ेगा 54.08 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 बार। ओके, सो ये हो गया हमारा। आफ्टर दैट 5.408 बार इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो कितने फाइंडिंग्स हो गए हमारे, तीनों फाइंडिंग्स। ये हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये हो गया थर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो जो भी फाइंडिंग्स थे हमारे, थर्मल एफिशिएंसी हमने निकाल दिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल दिया, और चलो एक फाइंडिंग हम हाथ से जोड़ देते हैं इसमें, फोर्थ। ओके, सो फोर्थ क्या है, चलो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा नहीं है वो भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें, दैट इज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अभी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ऑटो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वो है 1/1 माइनस RC रेज़ टू गामा माइनस 1। सो 1 माइनस 1 अपॉन RC क्या है, दैट इज कॉम्प्रेशन रेशियो 7:0.4। ओके, सो अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 माइनस 1/7 रेज़ टू 0.04। अब कैलसी नहीं है फिलहाल मेरे पास, बट सो जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग, 1 माइनस 1/7 रेज़ टू 0.04। सो लेट इट बी, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है ये आंसर। जस्ट अ मिनट, विद द हेल्प ऑफ कैलसी वी विल कैलकुलेट इट। सो ये होता है 1 माइनस 1/2.178। ओके, चलो करके देखते हैं आगे। 1 डिवाइड बाय 2.178 इज 1 माइनस 0.459। ओके, 1 माइनस 0.459, सो वो आ गया हमारा 541। सो ये हो गया आपका 0.541, ये हो गया हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ओके, so in that case we can also calculate the air standard efficiency. So ये हो गया हमारा numerical on auto cycle. If you feel any difficulties, please ask me. Okay, whenever you get the time. Okay, even though whatever the rough work I have did in this lecture, I will supposed to upload it. Okay, so thank you.